विषय, इस संगोष्ठी का विषय राष्ट्रवाद, उसका वर्तमान समय में उपयोगिता या उसकी महत्ता। तो इस विषय के बारे में जो संक्षिप्त परिचय हमारे अनुराग जी जो अधिवक्ता है उच्चतम न्यायालय में, मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस विषय के बारे में संक्षिप्त रूप से परिचय कराएं। अनुराग जी। Distinguished speakers, ladies and gentlemen, a warm good morning to all of you. When we were conceptualizing this thematic topic for our discourse, then threefold thoughts have crossed our mind. First and foremost was the existence of pandemic with which we are plagued with right now. The second concepts which has come up to our mind was the cross-national or cross-cultural impact of a particular event which has taken place in one dimension and has seriously impacted us here. The third was the dilution on conceptions of sovereignty of an state. And fourth, of course, was the existential crisis of an economic values which inheres in a social domain. So these were four central aspects where we have initially focused to conceptualize and discourse and to seek an answer for all those budding challenges which our society is grappling right now. With this, we thought it most appropriate that the conceptions of nationalism be revisited in these circumstances, especially when the challenges are intra-country and from outside both. And with this in our mind, we have requested our panelists to illuminate our thought process on those aspects. We are indeed very grateful, as one of our colleagues has expressly put in, that we have a diverse set of panelists today. On one hand, we have a distinguished Vice Chancellor who has a vast experience in seeing the economic outcomes of a particular policy which evolved in one country and later on it became a policy for whole world. So we are today living perhaps in an arena of supranational entities. To what extent these supranational entities have been successful in ensuring that an stability of a particular country and a sovereignty of a nation is maintained is of course a challenge to which we would be illuminated by Nigam sir. He has this vast work on Indian economies, and especially when we have transited from a protectionist model of Indian economy to a libertarian values of economic development. No society, no nation can further without there being certain inherent values which ordinarily inheres in the conception of its being a state in existence. And therefore, our conception of a state have been widely different from what the ideas of nationalism exist in this. And therefore, when I looked at this subject of course to the correction from distinguished speakers, then I found that the concept of national state, which is predominantly a Western concept, has a different meaning and rather a limited, it connotes in a limited way to what constitutes Rashtra. So the fundamental tenets of Rashtra lies somewhere else. It begins from Sadhuvad, it begins from a theoretical thematic perceptions which a particular state of social order inheres in a particular country, and to which we have a Kattimani sir's presence. He has a vast work on a thought process of a tribal, because at this stage we may look that there was a before pandemic there was a great surge to come on a mainstream things, but now we probably find that those who are kept aloof from mainstreams are probably benefited by the vicious cycles of pandemics or the vicious cycles of some consequence which may erupt and which could have been an unforeseeable for us. Therefore, with this thought in our mind, we have conceptualized this program, and I do hope that it would not only be an enriching experience for us to revitalize our thinking, but it would also invigorate our thought process, and probably it would instill us a sense of values which could ignite our mindset to a particular constructive avenue. With this, I would request the moderator to begin this program formally. Thank you so much. धन्यवाद अनुराग जी।
अब कार्यक्रम संगोष्ठी की हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रबुद्ध वक्ताओं और विद्वत श्रोताओं के बीच किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रहती, और यह मूल ऋजुता के विरुद्ध है जो भारतीय सनातन परंपरा द्वारा हमें सहज ही मिली हुई है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विवेक निगम सर को, जिनका मार्गदर्शन हमें विद्यार्थी रूप में हमेशा मिलता रहा है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वट वृक्ष के समान सार्वभौमिक, सार्वलौकिक और सार्वप्रासंगिक है। आप अर्थशास्त्र के उपाचार्य हैं। आपकी विशेष रुचि भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि नीतियों में है। आज के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में राष्ट्रवाद के बारे में सर हमें अभिसिंचित करें। विवेक निगम सर। नमस्कार जी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज का जो यह विषय है, रिविजिटिंग नेशनलिज्म इन कंटेम्पररी मिलियू, से हम भारत के लोग क्या समझते हैं और सामान्य तौर पर दुनिया में नेशनलिज्म के नाते क्या समझा जाता है, इस भेद को स्पष्ट कर लेना समीचीन होगा और उपयोगी होगा। नेशन या राष्ट्र की बहुत परिभाषाएं मिलती हैं। कुछ परिभाषाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सृजित राष्ट्र यानी जो नेशन क्रिएट किए गए हैं प्रयास पूर्वक, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ब्रिटिश द्वारा बसाया गया, बाद में यूरोप के दूसरे देश भी आए, तो उसको ध्यान में रख करके एक परिभाषा दे दी गई कि एक राज्य जिसमें अनेक राष्ट्रीयता के लोग रहते हों, या फिर और साथ में कह दिया गया कि जिसमें कुछ जनजातियां भी रहती हों, रेड इंडियंस को शामिल करने के लिए, या ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रख के परिभाषा दे दी गई। लेकिन जो 19वीं शताब्दी में यूरोप के चिंतकों ने दिया, तो यूरोप की परिस्थिति को उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे J.S. मिल ने नेशन स्टेट की बात की, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट की बात की गई। ज्यादातर जो पश्चिमी देशों में परिभाषाएं आई और जो टेक्स्ट बुक्स में है, जो पाठ्य पुस्तकों में है, जिन्हें कि हमारे विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी पढ़ते आ रहे हैं लंबे समय से, वो परिभाषाएं राष्ट्र और राज्य को एक सिनोनिम के तौर पर, एक समानार्थी के तौर पर देखने की अभ्यस्त है। किंतु भारत में राष्ट्र को लेकर जो संकल्पना रही, उस संकल्पना में अनेक बिंदुओं को सम्मिलित किया गया, और महत्वपूर्ण बात रही कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति प्रमुख रूप से होगी। अब ये संस्कृति किसकी है, तो एक समाज होगा। वह समाज कौन है, तो उसका एक भूभाग में मूल निवास है। उस भूभाग में रहने वाले ये मूल निवासी, इनके पूर्वज एक ही हैं, ऐसा स्वाभाविक है, और वो इसमें विश्वास भी करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं, दे हैव द कॉमन डिसेंडेंट्स। और स्वाभाविक है कि एक ही पूर्वजों से विकसित यह जो समाज है, उसके फिर शत्रु मित्र भाव भी एक ही जैसे होंगे। और यह जो समाज है, इसमें परस्पर एक भ्रातृत्व का भाव होगा, एक फ्रेटर्निटी है। अब ये सब जो बिंदु राष्ट्र के रूप में चिंतन में दिखाई देते हैं भारत में, इसमें राज्य को राष्ट्र से बड़ा नहीं माना गया, बल्कि एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं। राज्य एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है, जो राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से या
उस क्षेत्र में, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विषयों की चिंता करने की दृष्टि से बनाई गई एक व्यवस्था है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्र की संकल्पना है वह यूरोप के विद्वानों द्वारा दी गई संकल्पना से व्यापक भी है और भिन्न भी है। और इसकी भिन्नता का जो मूल कारण है वह राष्ट्र की संकल्पना में संस्कृति तत्व का महत्व या केंद्रीय भूमिका। अब संस्कृति क्या है? तो संस्कृति को सामान्यतया कल्चर कहा गया। एक समस्या और सामने आती है कि पश्चिमी साहित्य में कल्चर और सिविलाइजेशन का घालमेल कर दिया गया, संस्कृति और सभ्यता में बहुत भेद नहीं रखा गया। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर कुछ मनोरंजक कार्यक्रम हो गए, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हो गए, या वहां की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाने वाली कथाएं, साहित्य हो गया। लेकिन संस्कृति इससे कहीं गहरी और कहीं अधिक प्रभाव रखने वाला तत्व है। संस्कृति सृजित नहीं होती बल्कि स्वतः विकसित होती है। संस्कृति एक आत्मा तत्व है, कल्चर जो है एक तरह से सोल है, और संस्कृति एक समाज के स्वाभाविक विकास क्रम की प्रक्रिया में, जिसमें कि खान पान के तरीके, पहनावा, भाषाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक प्रणालियां, ये सब विकसित होती हैं। इस विकास के क्रम में सबके बीच सौहार्द बना रहे, एक स्नेह का भाव बना रहे, करुणा तत्व प्रभावी हो, इस चिंतन के साथ मनीषियों के द्वारा, तो एक प्रकार से विकास की प्रक्रिया में जो उत्तम नवनीत छन कर ऊपर आता है वह संस्कृति तत्व के रूप में दिखाई देता है। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे भारत में अनेक राज्य थे, अनेक जनपद थे प्राचीन काल में, किंतु इन सब जनपदों में एक ही तत्व स्वीकार किया जाता था। मूल जो चिंतन था वह यह था कि ब्रह्मम सर्वइदं खल्वम, सभी में एक ही ब्रह्म है। कण कण में ईश्वर देखने की संस्कृति इस देश में विकसित हुई, जो किसी एक जनपद या राजनीतिक सीमा से बंधी नहीं थी। सभी में एक ही ईश्वर है, इसके नाते परस्पर भ्रातृभाव। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि भारत में वाद जैसे तत्व का बोध न था, न कराया गया। यह तो पश्चिम से चल पड़ा, लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म एक लोकप्रिय शब्द बन गए, बहुत अधिक प्रचलन में है, तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम भी कर लेते हैं। परंतु इन शब्दों से, यानी भारत में जो नेशनलिज्म के रूप में जो समझने की बात है वो नेशनहुड है, राष्ट्र तत्व को समझने का विषय है। अब ये जो राष्ट्र तत्व है यह सबको साथ लेकर चलने वाला है, ये विश्व मानवता के कल्याण की चिंता करने वाला है। और इसलिए जो भारत की राष्ट्र की संकल्पना है, जिसमें सभी में एक ही को देखने की भावना है, सभी में एक ही को देखने का दर्शन है, चिंतन है, विचार है, वह टकराव को कभी जन्म नहीं देती। भारत का राष्ट्र चिंतन भारत के सांस्कृतिक चिंतन के अनुरूप रहा, कि जैसे भारत का सांस्कृतिक चिंतन कहता है कि एक ही सत्य को बुद्धिजीवी या विद्वान अलग अलग ढंग से कहते हैं, उसी प्रकार हम सब विश्व में जो अनेक राष्ट्र हैं वह सब अपने अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम करें, किंतु किसी के मन में दूसरे का शोषण करने, दूसरे की भूमि को बलपूर्वक अपने अधिकार में लेने, युद्ध के द्वारा उसको जीतना या वहां पर अपनी बात थोपना, इम्पोज करना,
अपने आइडियाज को, अपने चिंतन को, ऐसा भारत में कभी स्वीकार नहीं किया गया। सब मिलकर विकास करें, स्वेच्छा से जिसको जिसका जो अच्छा लगे वो स्वीकार करें। कुल मिलाकर राष्ट्र और राष्ट्र तत्व का बोध हमारे अपने राष्ट्र के विकास के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के विकास में सहयोगी हो। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि लंबे ब्रिटिश शासन काल में भारत के जो परंपरागत चिंतन था, भारत का जो सांस्कृतिक विरासत थी, जो यहाँ के समाज की रीढ़ कही जाने वाली मान्यताएं थी, जो समाज को दिशा देने वाली शिक्षा पद्धति थी, इन सब में प्रयास पूर्वक परिवर्तन किए गए। हम भारतीय दृष्टिकोण से कहें तो विकृतियां उत्पन्न की गई, जो विकृतियां ब्रिटिश शासन को शक्ति देने वाली थी। इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे जो मूल चिंतन था, जो मूल दर्शन था, वह अगली पीढ़ियों के मन मस्तिष्क से विलुप्त होता गया या उसका प्रभाव क्षीण होता गया। परिवारों से जो संस्कार मिलते थे और विद्यालयों से जो शिक्षा मिलती थी, उसमें टकराव दिखने लगा। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि 19वीं शताब्दी में एक ऐसा दौर भी आया कि एक ही विचार को सारी दुनिया पर लाद दिया जाए। वह मार्क्सवादी विचार को लेकर रूस में हुई क्रांति और उसके साथ उसके दुनिया भर में विस्तार का विषय हो, जहां यह कहा जाए कि दुनिया के सारे सर्वहारा एक हो, एक ही चिंतन, मार्क्सवादी चिंतन ही सारे विश्व के लिए उचित है और सबको यही मानना चाहिए। या फिर कुछ धर्मों के नाम पर या कुछ रिलीजन्स के विचार को लेकर के चले कि इसी विचार को सारी दुनिया को मानना चाहिए। और हमने देखा कि इन चिंतनों के कारण 2 बड़े महायुद्ध हुए, अनेक प्रकार के मानवता के शोषण हुए। अमेरिकी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप और न्यूजीलैंड बड़े द्वीप से वहां के मूल निवासी किसी कोने में ढकेल दिए गए या फिर पूरी तरह से समाप्त हो गए। किंतु कृत्रिम रूप से जो समान विचार सब पर लादने के प्रयास हैं या पूरे विश्व को एक रूप बनाने के प्रयास हैं, यह नैसर्गिक नहीं है और इसलिए इनको विफल होना था और यह एक एक करके विफल होने लगे। यद्यपि प्रयास इस प्रकार के कुछ प्रयास अभी भी जारी है। भारत का दुर्भाग्य रहा कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत में मूल भारतीय दर्शन, मूल भारतीय चिंतन को आधार बनाकर जो भारत की व्यवस्था को विकसित करना चाहिए था, भारत के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाए जाने चाहिए थे, भारत के आर्थिक चिंतन को, भारत की अर्थव्यवस्था को उस पर आधारित किया जाना चाहिए था, जैसा महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की थी, या फिर भारत में लोकतंत्र का वैदिक काल से उल्लेख मिलता है। भारत के सिकंदर के आक्रमण के समय और उसके बाद के कालखंडों में भी यहाँ के समृद्ध और सशक्त गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अपनी विरासत को छोड़कर विदेशी जो चिंतन था उसको भारत पर लादने का प्रयास हुआ। अब यह इन कारणों से हुआ, इन पर बहुत चर्चा होती है, अभी उचित यहाँ पर इतना समय भी नहीं है और उचित भी नहीं है, परंतु हमारी नई व्यवस्था भारतीय जन किंतु विदेशी चिंतन के साथ आरंभ हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे यह बात स्थापित होने लगी कि भारत तो एक राष्ट्र कभी था नहीं, भारत तो एक संस्कृति वाला देश नहीं है, क्योंकि यूरोप में राष्ट्र की परिभाषा हुई कि एक भाषा बोलने वाला, एक जाति, रेस का समाज। तो अलग अलग सभ्यताओं,
वेशभूषा को जिनका प्रतीक माना गया, उसके आधार पर भारत में विभिन्न प्रांतों के लोगों को अलग अलग राष्ट्रीयता के तौर पर दिखाने का प्रयास हुआ। यद्यपि भारत का जो समाज के द्वारा शिक्षण स्वाभाविक होता रहता है, परिवारों के माध्यम से, सामाजिक सम्मेलनों में, सामाजिक जो विचारों के आदान प्रदान होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके कारण भारत एक राष्ट्र था, एक राष्ट्र है, यह बहुतायत जनों के मन में विचार कहीं ना कहीं अंदर बना रहा। प्रयास बहुत हुए, इन राजनीतिक प्रयासों के कारण अलगाव के स्वर भी फूटे, लेकिन फिर भी दक्षिण का, तमिलनाडु का व्यक्ति, उसके लिए काशी महत्वपूर्ण बना रहा और उत्तर भारत के व्यक्ति के लिए रामेश्वरम का दर्शन महत्वपूर्ण बना रहा। अब भारत में पूजा पद्धति पंथ और धर्म को एक जैसा मिक्स करके देखने का भी चलन हो गया, क्योंकि रिलीजन, धर्म का अनुवाद किया, दुनिया में प्रचलन में आ गया। परंतु धर्म जो यहाँ का था, जो कर्तव्य आधारित समाज मूलतः जिसको संक्षेप में कहें, और एक सुसभ्य सुसंस्कृत कर्तव्य आधारित समाज, अब चूंकि भारत में सभी क्षेत्रों के मनीषियों का चिंतन एक ही स्थान पर, यानी एक ही बिंदु पर कन्वर्ज हो रहा था, इसलिए पूरे भारत में जो संस्कार विधि रही, जो पूजा पद्धति रही, वह भी बहुत मिलती जुलती हुई। परंतु धर्म और पंथ, इसके भेद को समझना होगा। शैव और वैष्णव या शाक्त या और अन्य पंथ, या सिख पंथ हो या अन्य भारत में जो अनेक पंथ रहे, इनकी पूजा पद्धतियां भिन्न हुई, परंतु इन सबका धर्म एक ही रहा। सबके मूल में जो भारत में राष्ट्रीयता रखने और राष्ट्रीय जनों को एक सूत्र में बांधे रखने वाला तत्व है कि अपने से पहले अपने समाज, अपने राष्ट्र के अन्य जनों की चिंता करना, जिसे कहा गया, दो सूत्रों में समझा जा सकता है कि इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा तेन त्यक्तेन भुंजिता। और ये केवल व्यक्तियों के लिए नहीं था, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय चिंतन पूरी सृष्टि के साथ एकात्म का चिंतन है। किंतु इस चिंतन पर जो पश्चिमी चिंतनों को थोपा गया, इस समाज को अधिकार केंद्रित समाज के रूप में बदलने का प्रयास हुआ। और कई बार मैं कड़े शब्द का प्रयोग करता हूं कि लंबे समय तक जो समाजवादी चिंतन इस देश पर लादा गया, उसने इस देश के व्यक्ति को दाता से मंगता बनाने का प्रयास किया। यदि हमारे गांव में गंदगी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, उसको सफाई करनी चाहिए। हमारा बेटा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है तो सरकार जिम्मेदार है, उसको चिंता करना चाहिए। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमारे शहर में लोग आपस में झगड़ते रहते हैं तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। समाज का कोई दायित्व ही नहीं। तो इस प्रकार का जो निर्माण का प्रयास हुआ, और वो इस कारण हुआ क्योंकि हमने लोकतंत्र ये यूरोप और अमेरिका से लिया और उसके साथ लिपट कर आ गया इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद बिखराव के लिए जिम्मेदार होता है। अंतर आप देख लीजिए, कोरोना के इस संकट काल में भारत में लोग, सामान्य आय वर्ग के लोग, रिटायर्ड आर्मी का जवान अपनी सारी जमा पूंजी 15 लाख रुपए दान कर देता है। गुरुद्वारे से लोग निकल पड़ते हैं भोजन कराने। धनी लोग अपने सहयोग दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति में से सहयोग कर रहा है। लेकिन अमेरिका में कम्युनिटी किचन एक मैसेच्यूसेट के पास के एक छोटे से कस्बे में चलाया कुछ लोगों ने, और उनको बार बार अब कहना पड़ रहा है
कि जिस तरह से यहाँ पर लोग भोजन के लिए आ रहे हैं और इस संकट में स्थिति उत्पन्न हुई है, हमको चारों तरफ से सहायता की आवश्यकता है और उनको भरपूर सहायता नहीं मिल पा रही है। तो ये अंतर यूएस और भारत के समाज में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि भारत के समाज का जो राष्ट्रीय तत्व है वह पूरी तरह से मरा नहीं है। लेकिन इसी कोरोना के काल में जो लंबे समय से इस देश में कहा गया राजनीतिज्ञों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा कि यह एक बहुसांस्कृतिक देश है, बहुराष्ट्रीय देश है और इस नाते इस देश के प्रति एक ही विचार को सबको मानना जरूरी नहीं है, उसके कारण उत्पन्न समस्याएं साफ दिखाई दे रही हैं। यानी इस देश में रहने वाला ही एक बड़ा वर्ग जो इस देश की व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो इस देश के जो अपने फेलो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनको भाई बहन के तौर पर स्वीकार करने को नहीं है, जो डॉक्टर जो नर्सेज उनकी सेवा में लगे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं, उनको भी वह अपने हितैषी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण यह है कि लंबे समय से कहा गया कि इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति है। मेरा बेटा छोटा था, एक दिन उसने पूछा कि पापा गंगा और जमुना तो संगम पे मिल जाती है, जब मिलने के बाद तो फिर वो एक ही हो जाती है, गंगा रहती है, तो ये गंगा जमुनी संस्कृति क्या होती है? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि एक ही समाज में दो संस्कृतियां चले यह संभव ही नहीं। परंतु एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए बुद्धिजीवियों ने जो यह लंबे समय तक षड्यंत्र चलाया, और आज जब उनका यह षड्यंत्र खत्म हो रहा है, जब निष्प्रभावी हो रहा है, तो जिस तरह से विक्षिप्त होकर उनमें से कोई बेंगलोर की सड़कों पर उतर करके अपनी छाती पीटता है, या कोई केरल में राज्यपाल जैसे प्रतिष्ठित पद के व्यक्ति को भाषण करते हुए सारी सभ्यता, सारी शिक्षा भूलकर जाहिलपने की हद पार करते हुए उनके हाथ से कागज खींचने की कोशिश करता है, यह दिखा रहा है कि और एक आशा की दीप रोशनी दिख रही है कि भारत के समाज पर जो विकृतियां थोपने का प्रयास हुआ था उनका काल अब क्षीण हो रहा है। भारत का युवा अपने मूल विचारों के निकट आ रहा है और भारत का युवा इस देश को पूरे विश्व मानवता के कल्याण के साथ भारत के हित को, कल्याण को जोड़ते हुए आगे लेकर चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हम लोगों ने देखा कि सर ने कितने संक्षेप में ही राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्र की विभिन्न परिभाषाएं, उनका यूरोपीय परिस्थितियों के आधार पर, और बताया कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में राष्ट्र की परिकल्पना संस्कृति पर आधारित है और वह स्वतः विकसित है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद न होकर के भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र तत्व है। और वर्तमान में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उन्होंने हम लोगों को विस्तार से समझाया कि किस तरह से राष्ट्र पुनः एकीकरण की ओर, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद सर। इस आगे बढ़ते हुए, भारत भूमि पवित्र है,